today strengthen us, restore us, and inspire us with wit and wisdom, strength and patience, knowledge and creativity, and hope and grace, so that with great courage I will find the best in every situation. Please stand beside us through each day. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. Copy correction, cross checking, report card, mark list submission, discussion sheet submission, PDF, commencement of new session, and term-wise status plan. So now, our correct agenda of the meeting are medical checkup. Okay, so I would like to call our principal sir to share his views for the strategy of agenda. Medical checkup, result declaration, examination, commencement of new session, timetable, accommodation of students, billing wise, CR report, progress of admission register, teacher presentation, others point review condition to the chairman or principal sir. So now I would like to principal sir so that he can start meeting with his valuable and fruitful study. Thank you, sir. Thank you, Dr. Meenakshi Subramanian. Teachers were sitting next to you. Are they getting you properly? The teachers were sitting in class. Are they getting you properly? So immediately the Meenakshi madam had described the two of the agenda of the retrospect and agenda of the reset today we are going to discuss about the certain points. And the retrospect one of the certain point is the last agenda point over there, distribution of the syllabus, monthly distribution of syllabus for your subjects. So actually it was a plan in coming session when we start the new session. The father must be safe and the teacher must distribute the syllabus according to month wise. So on that I would like to learn the teachers. Teachers have divided their syllabus according to month wise. Are the teachers give the one? Are they already have a timetable? Because what happens, the teachers recently they are taking their classes. Most probably in new accounting session it will be slightly changed. You may be change of your subject, it will change of your class. So it will be slightly changed. But you, the teacher, must divide the syllabus in the recent project situation. And when the teachers are taking the responsibility of next, so he or she will just divide the syllabus. So in your level, you should divide the syllabus first. If it is not, because I am thinking all the teachers are very much busy for completion of the before examination, correction, evaluation, copy checking, and preparation of the report card, etc. Several works are there. Because we have the less time also, and yesterday we could have completed our examination. Today is the first day after the examination. Tomorrow is Sunday, we holiday. Day after tomorrow Monday is also holiday. 29 is to be open and 31st. These are the day in your hand. And in this day we have to complete all the formalities. Not only the copy checking, but the cross checking also, evaluation, and after that handing over the mark to department of examination, writing the progress card, and writing the result sheet also. Results is necessary to class 9 and class 11, it is necessary. But earlier also I have instructed up to class 8 teachers, if the result is appropriate, you can analyze the progress card. So, to save topics introduction and acknowledgement, one by one I would like to interact with the Department of Examination from the middle, high school and other way. They must come to just acknowledge the brief summary about the people in this examination. In this sequence, may I speak to that Rajesh Doctor sir? Is there? Okay.
साइंस का है ज्योति पटेल मैडम का, और कल के डेट में संस्कृत का हुआ है 3 सेट्स में दूसरा में। प्रोग्रेस कार्ड पहले से 30 तक में लगभग 90% पूरा हो गया, कंप्लीट किसी का नहीं है। पोस्टिंग बचे हुए 1 तक पूरा हो ही गया था, जिसका भी मार्क्स लिया है सब चढ़ा है 30 तक लगभग ये काफी ये काम पूरा चैनल 1 to 7 तक का पूरा काफी कंप्लीट हो गया। यस ये का संस्कृत और साइंस ये काफी उससे सब संस्कृत हाँ, और सर। उनसे साइंस यस 9th and 30 सब पास 9th गुड मॉर्निंग सर। टोटल से 9 चौवालीस सेट हुए हैं, इसमें 24 9 से 20 इवेंट ज्यादा नहीं है। अच्छा चलिए इसमें 9 के 13 से आ चुके हैं और 11 में 15 से टोटल 28 से हो चुके हैं कंप्लीट, 10 रनिंग में हैं और 6 हैं वो कल हुए बहुत ही 29 30 तक कंप्लीट हो जाएंगे। जी सर। Respected Professor, Chairman, and respected teachers. यहाँ बने में सीधी इंग्लिश मीडियम का प्री नाम की कॉपी चेकिंग के बारे में मैं बताऊंगी। प्री कंपनी का जर्सी कंपनी हो गया सर, बोर्ड कार्ड बन चुका है। प्राइमरी में जनरल 1 से जनरल 3 तक 10 सेशन है, काफी बड़ा 60 है। इसमें सब कंप्लीट हो चुका है, बॉडी चेक हो चुकी है, रिजल्ट शीट बन रही है, रिपोर्ट कार्ड का 95% कंप्लीट हो चुका है। मिडिल सेशन में 6 to 8 में 7 सेशन है, काफी बड़ा 56 है, इसमें 49 कंप्लीट है, 7 बचा हुआ है। 6C का इंग्लिश, 7 A मैथ्स, 8 का संस्कृत और साइंस, टोटल 8 नंबर बचा हुआ है सर। टोटल बना काफी 116, जिसमें 109 काफी चेक हो चुकी है, 7 लेफ्ट है। यस सर, ट्यूजडे कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। बस बी बोर्ड का नंबर को मिल कर आती है ताकि आगे टीचर कंप्लीट करें। यस सर, थैंक यू। ऑलमोस्ट सभी के परीक्षा विभाग से सारे डिस्कशन आ चुके हैं और जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है, कुछ जिसके पेपर का कंप्लीट हुआ है या 2 दिन कंप्लीट हुए हैं, उनके कुछ काफी बचे हुए हैं, बाकी सारा वैल्यूएशन कंप्लीट हो गया है। इसका अर्थ यह है कि हमने जो पहले प्लान किया था कि एग्जामिनेशन के बाद हम जितने दिन का अंतराल है उस अंतराल में हम काफी कुछ चेक कर पाएंगे। तो उस स्थिति में एकदम से मेरे ख्याल से अनुपातिक रूप में हमारा वैल्यूएशन सही चल रहा है और सब की समिति है और उसके बाद अभिभावक भी है, ये सबके कमेटी बनी हुई कमेटी में उसके बाद फीस को अप्रूवल करना है। तो हमने लगभग 2 दिन पहले फीस के अप्रूवल ले लिया है और हिंदी मीडियम में ये फीस की बढ़ोतरी 2 से 3% की गई है, जबकि शासन के निर्देश के अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रबंधक चाहे तो 8% की शुल्क की वृद्धि कर सकती थी, लेकिन हम किसी में भी चाहे CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में किसी में भी 1% की बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं आप सभी को जानकारी प्रदान कर दूं और आप भी तुलना करके अभिभावकों को बताएंगे। बहुत सारे अभिभावक ये क्लेम करते हैं कि सर आप 5 साल फीस बढ़ा देते हैं, तो कम से कम आपके पास संवाद करने का तरीका हो और ये चीजों को बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार हम 8% बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने तो कम 5% या 3% ही बढ़ाया है। तो फीस की बढ़ोतरी को मतलब इसको एवरेज को आप लीजिए, अगर हमने 450 रुपये पर मंथ में जो फीस था उसको हमने राउंड अप कर दिया, 500 रुपये कर दिया, कहीं 470 रुपया था उसको 500 रुपया कर दिया, इस प्रकार की नामकरण वृद्धि हुई है। तो मेरे कहने की आशा है कि कम से कम अभिभावकों का जरूर बताएं, पेरेंट्स को बताएं या छात्रों को बताएं कि आपको कम से कम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन में क्या आशा है कि कम से कम उनका पहला इंस्टॉलमेंट पे हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि ये लगभग हर साल मीटिंग होती है बातें, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आश्वस्त हो देना चाहता हूँ कि जो बातें हम बोल रहे हैं वो आप किस हद तक फॉलो करते हैं और कितना समझ पाते हैं। मैं इसके उदाहरण के तौर पर किसी के टीचर कोई टीचर स्वेच्छा से बता हाथ खड़ा करके बताया कि सर मैं ये करने जा रहा हूँ, ये बातें समझ में आ गई है, या नाम से मैं किसी टीचर से स्पेशल के रूप में पूछ
तो 8 के बच्चे प्रमोट होकर तुम्हारे क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। 8 के अगर 40 बच्चे प्रमोट होकर 9 में आ रहे हैं तो 40 का बच्चे तुम्हारे पास आ गया। जब 4 तारीख को या 5 तारीख को जब पहला दिवस है, अटेंडेंस ले रहे हो तो सब अटेंडेंस पीपी हो गया, तो ठीक है 5 तारीख को अपना करते रहेगा। 6 तारीख को ऑफिस काउंटर में पता लगा तो कितने का रजिस्ट्रेशन और कितने का फीस पे हुआ है। 40 तो हो सकता है कि किसी का नाम हो, लेकिन बच्चे प्रमोट हो गए तो 19 आ गए। तो आप उनको निर्देशित करो कि आप अपने फीस को बताया ताकि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो सके और अटेंडेंस वैलिड हो। अभी जो अटेंडेंस बदलो वो अनवैलिड होगा, क्योंकि वो अभी बच्चे अटेंडेंस आ रहे हैं, प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट नाउन तब तक नहीं होगा जब ऑफिशियली वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाते हैं। वो वेरिफिकेशन कहाँ से होगा? फीस काउंटर से होगा। जिसका 10 से या 20% से कंफर्म कर लो कि सर कितने बच्चे ने यहाँ पर फीस बता दिया है, तो 40 में 5 बच्चे ने बताया, 35 नहीं बताए हैं, ठीक है। तो 35 को बोलो कि आप अपने पेरेंट्स का बताएं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दें और जितना भी हो सके प्राचार्य ममता मैडम, रेखा मैडम और मैडम, जिसेन मैडम, जानकी मैडम और सारे हमारे टीचर्स, हमारा ये सत्र 21-22 इसका अब क्लोजिंग की ओर हम काफी आ चुके हैं, करीब आ चुके हैं। हमारे एजुकेशनल जो वर्क है वो लगभग खत्म है। आप लोग काफी जांच लिए होंगे या जांच रहे होंगे, मार्कशीट तैयार हो रही होगी, ये सारी चीजें मतलब समाप्ति की ओर है। अब एक ही काम बचा है मेरे ख्याल से, जो मुख्य काम है वो रिजल्ट का डिक्लेरेशन और उसके बाद नए सत्र की शुरुआत, जिसके बारे में सर आप लोग को विस्तार से बताएंगे। अभी कुछ चर्चाएं सर कर रहे थे कि कुछ ऐसा समय और वातावरण निर्मित हुआ पिछले 2 साल में कि बच्चों के ऊपर उसका अच्छा इफेक्ट नहीं आया है, कम से कम काफी हद तक उसका खराब इफेक्ट आया है। और उसके पीछे आप सब लोग जानते हैं कारण, उसमें कोई अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को फ्री हैंड मोबाइल मिला, बच्चे फ्री हैंड रहे, स्कूल में डिसिप्लिन से बाहर रहे और अब वो उनके काफी लोगों के काफी हद तक आदत में शुमार हो चुका है। अब हमको उनको सही तरीके से आगे लेके जाना है, फिर से एक स्कूल की डिसिप्लिन, एक उनके बातचीत का तरीका, लहजा, इनको फिर से अपन को ठीक कराना है। इस साल आप लोगों ने काफी मेहनत की है, लिखने का स्किल जो काफी कमजोर हो गई, ये इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा का विषय है कि बच्चों की राइटिंग स्किल एकदम वीक हो चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि 2 अगस्त से लगभग बड़ी क्लास में तो 100% एक आध माह को छोड़ते जनवरी को क्लासेस लगी है और शायद आप लोगों ने फोकस भी किया होगा इस पर। छोटे बच्चों को भी 6 महीने तो कम से कम क्लास चली है हमारे यहाँ, 6 महीना 5 महीना, तो हम समझ रहे हैं कि काफी हद तक उसमें सुधार आया है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन को भी इस बार हम न तो बहुत ज्यादा प्रेयर पर फोकस कर पाए, हमारी क्लोजिंग सेरेमनी होती थी वो नहीं कर पाए, टाइमिंग हम कम से कम पढ़ाई होता है जिसमें क्लास टीचर बच्चों से मुखातिब होता है। वो पहली बार समझ लीजिए दिन भर में वो क्लास में जाता है और टीचर से सबसे पहले तो अटेंडेंस लेता है, और अटेंडेंस लेने के बाद जब टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं तो वहां से उस बच्चे की स्कूल के प्रति उस दिन का उसका दिन कैसे बीतना है ये निर्धारित होना शुरू हो जाता है। अगर हमारे टीचर, क्लास टीचर जो होते हैं वो सही तरीके से टैकल कर लिए, अच्छे से बच्चे को कंट्रोल कर लिए और जो वो पढ़ा रहे हैं वो रोचक तरीके से और पूरी अनुशासन का पालन करवाते हुए, ऐसा नहीं कि बीच बीच में हंसी मजाक के थोड़ा बड़ा वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बातें ऐसी बोल दिए बच्चों से, कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे उनका थोड़ा सा चढ़ाव कम हो गया,
तो ये सब चल सकता है, लेकिन उसके बाद डिसिप्लिन था। अभी सर जैसे बता रहे थे कि कुछ टीचर अपने रास्ते जाते हैं और अपने रास्ते आते हैं, मतलब सीधा एयर स्टाइल में, मतलब जैसे जो हवाई जहाज चलता है वैसे देखते हैं, आजू बाजू बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है तो ऊपर कोई ये नहीं होती। ये आपका मान के चलिए कि आपकी बच्चों की नजर में जो एक इज्जत होनी चाहिए, जो एक दबदबा होना चाहिए, एक सम्मान का भाव होना चाहिए, वो खत्म। आपको बच्चा इग्नोर करना शुरू करेंगे, ये तो हमको कुछ बोलते ही नहीं, ये आपको बनाना पड़ेगा। अगर बच्चा आपकी नजर में आ रहा है तो गलत तरीके से वो बिहेवियर कर रहा है, उसकी स्टाइल गलत है, उसके जो हमारे स्कूल का जो सिस्टम है उसको पालन नहीं कर रहा है, तो आपको टोकना तो पड़ेगा। और ये इसके लिए अलग से एक अनुशासन प्रभारी बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ये हर टीचर में होना चाहिए। प्रत्येक टीचर में जो स्कूल में शिक्षण का कार्य कर रहा है, वो कोई भी इसके लिए जवाबदेह है कि उस बच्चे को वो टोके। ये बिल्कुल एकदम 100% सही बात है। तो इन सब चीजों को आप लोग नए सिरे से जब तक आप अपनी जवाबदेही में नहीं लाएंगे, तो मान के चलिए कि डिसिप्लिन हमारे बच्चों का कमजोर थोड़ा सा ज्यादा ही हुआ है। अभी हम लोगों ने ये होली के पहले 9th और 11th का एग्जाम था, 9th और 11th का एग्जाम था, हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। मई सर को आपत्ति किया, बोले सर इसके संदर्भ में सभी शिक्षक विशेष ध्यान रखेंगे, इसकी जानकारी आपको पहले से मिल जाएगी। और जहाँ तक ये संभव है कि आगामी जैसे मंगलवार या बुधवार तक अगर संभव हो सका तो सभी क्लास टीचर्स को बता दीजिए कि कौन कौन से विषय के कौन कौन से क्लास के क्लास टीचर्स रहेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई चेंज पदाधिकारियों के माध्यम से होगा तो सबसे पहले मैं शिक्षकों से निर्देश कर देना चाहता हूँ कि कोई आग्रह नहीं करेंगे कि सर मैं इसका क्लास टीचर बनना चाहता हूँ, ये मेरे को इसमें चेंज कर दिया गया, क्योंकि हम सारे चीज को आकलन करके पूरा एक नए गणना के हिसाब से और क्लास टीचर का निर्धारण किए हैं। तो सारे कार्यक्रम जब आपके सामने प्रस्तुत होंगे तो सभी शिक्षकों को उसको एक्सेप्ट करना होगा और उसकी तैयारी करनी होगी। आप सभी को मालूम है कि जब हम ये परिचर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको बताया था कि हम लोग इस वर्ष क्या करने जा रहे हैं। 5 तारीख के बाद से जब सी सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, आप सभी को मालूम है कि मॉर्निंग शिफ्ट की क्लासेस हैं। जिस जिस फॉर्म में जिनका सेक्शन लगना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई, उनके क्लासेस के उपरांत सभी शिक्षक पुनः हाल में आएंगे और हाल में आने के बाद सभी शिक्षकों का विषय से संबंधित एक प्रेजेंटेशन होना है। उस प्रेजेंटेशन के लिए सभी शिक्षकों को हमने यहाँ पर नामित किया है और हम लोग एक शेड्यूल डिटरमाइन किए हैं। अब प्रत्येक दिन मैं बता देना चाहता हूँ, प्रत्येक दिन 6 तारीख से क्लास के उपरांत 2 शिक्षकों का प्रेजेंटेशन होगा और यह प्रेजेंटेशन आपके विषय और पाठ्य प्रश्नों से संबंधित होगा। इस बार हम प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा सब्जेक्ट ओरिएंटेड रखते हैं क्योंकि हम आगामी सत्र में चाहते हैं कि अब शिक्षा की मुख्य धारा से साथ जुड़े तो शिक्षक भी उसकी पूरी तैयारी के साथ रहे, पूरी प्रभावी रूप से क्लासेस होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब फॉर्मल क्लासेस ना हो, औपचारिक क्लासेस की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आप अपने आप को किस हद तक तैयार कर दिए हैं हम उसको भी एक बार सर्वे करना चाहेंगे, ऑब्जर्व करना चाहेंगे और प्रत्येक शिक्षकों को हम स्क्रूटनी करने के लिए 30 मिनट का समय देंगे। जैसे आप पार्टिकुलर्स देख रहे हैं, कमेंसमेंट 6 अपार्टमेंट को ड्यूरेशन 30 मिनट्स का है, पर डे 2 टीचर्स का प्रेजेंटेशन होगा और टॉपिक में रहेगा माय सब्जेक्ट इफिकेशियस टीचिंग। मेरा विषय एक्चुअली सुधार, मेरा विषय वो प्रभावी अध्यापन, मैं क्या विषय पढ़ाता हूँ और मेरे विषय को पढ़ाने के लिए क्या किस प्रकार से प्रभावी मेरा शैक्षणिक कार्य होना चाहिए, मैं अपने शैक्षणिक विधान को किस ढंग से पढ़ाऊंगा या किस ढंग से पढ़ाऊंगी, इस पर आपका प्रेजेंटेशन होगा। जैसे गणित का शिक्षक या विज्ञान का शिक्षक फॉर्मल टीचिंग नहीं करेगा कि पढ़ेंगे, ऐसे सोच लेंगे हमारा काम है कि तो 20 बच्चों का सेशन मिलेगा, हम आराम से पढ़ा लेंगे, तो ये स्थितियां ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। इस विषय को विशेष ध्यान रखेंगे, आप सभी कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमको एडमिशन मिलेंगे।
ये कोरोना से पहले तो स्थिति नहीं थी, अभिभावक भी वही है, बच्चे भी वही है, तो सोच को बदल गया। ये आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि शासकीय मामले में थोड़ा सा अलग से मार्गदर्शन आ गया, आत्मानंद स्कूल हिंदी मीडियम भी आ रहा है, इंग्लिश मीडियम तो है, ये शासन अपना कोशिश करेगा। सिर्फ ये सोच के कि शासकीय स्कूल में बच्चे जा रहे हैं और हमारा कोई स्कूल हो गई है, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि शासन की योजना वहां पर रायपुर में बैठे कर रही है और वो अगर सफल है तो हमारे पीछे स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं बना सकते। तो आपको बताना होगा। मैं चाहता हूँ कि इस रणनीति पर इसको बहुत ही ध्यान चिंतन की जरूरत है और कोशिश करें कि हमारा एडमिशन बैलेंस हो जाए। ममता मैडम, मैं चाहूंगा कि कम से कम इस विषय को गंभीरता से और हिंदी मीडियम के टीचर के साथ बैठकर इस योजनाओं पर काम करें, ताकि आगे वाले जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह से कैसे उतर सके, ये भी हमारे लिए चिंता के विषय है। हम सिर्फ पेडोलॉजी बनाते हैं और हम यहाँ पर शिक्षक की गुणवत्ता की काम करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दर संख्या होने की आवश्यकता है, ताकि उतने छात्रों को उनका लाभ मिले, अभिभावक को जोड़े। देखिए, अभिभावक अपने बच्चों को एडमिशन क्यों कराएगा? जब उसको लगेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता है, शिक्षा उस अनुरूप में है, शिक्षा की सारी व्यवस्था मिली है, विद्यालय में सारी सुविधाएं मिल रही है। जब सब कुछ अगर अच्छे से है तो अभिभावक को सकारात्मक सोच निश्चित रूप से आएगा। तो ये शिक्षकों को बताना होगा कि यहाँ सब कुछ बेहतर है और हम बेहतर करेंगे और क्या क्या अभ्यास कर रहे हैं। आप देखिए कि प्राइवेट क्लासेस में जो चीज सीबीएसई में करने जा रहे हैं, जो कक्षाओं का अनुभव कर रहे हैं, पाठ्यक्रम है, वो तो हिंदी मीडियम में भी हो रहा है। किसी प्रकार का मैनेजमेंट की तरफ से भेदभाव नहीं है, सब कुछ एक समान है। एडमिशन में इतना गिरावट क्यों? ये भी चिंता का विषय है। तो सभी शिक्षकों को समझना होगा और हर शिक्षक इसके लिए उत्तरदायी होगा। हिंदी मीडियम में हर शिक्षक उत्तरदायी होगा और जो शिक्षक बेहतर या प्रयास करके एडमिशन से लाता है तो विभाग नहीं होगा कि हाँ आपने इसको सकारात्मक ढंग से लिया है और स्कूल के हित में काम किया है और अभिभावकों को इस तरह समझाने में सफल हो गए हैं। इन सभी शिक्षकों को समझना होगा। ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको कृपया शिक्षक गहराई से ले और गंभीरता से ले। आगे का समस्या इससे निश्चित रूप से है और आप लोग इसके लिए हमारे साथ बैठ के चर्चा करके इस काम को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना है। समाज को आगे बढ़ाइए, अभिभावकों को जोड़िए और एडमिशन के लिए कोशिश करें। ये सभी शिक्षकों को निर्देशित है। हो सकता है अंग्रेजी माध्यम के टीचर भले इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, वो भी कोशिश करें कि हमारे विद्यालय में बैलेंस संतुलन बना रहे। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। होगा एंड हमारा स्कूल भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे टीचर्स की बेटर हेल्थ रहे और जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो हमारा स्कूल भी स्मूथली कंडक्ट होगा। रजिस्टर कंप्लीट करने के बाद ही हैंडओवर करेंगे, ठीक है? आपके एचओडीज के साइन होने के लिए कि आपने रजिस्टर कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट इन द सेंस ओनली नॉट अबाउट द अटेंडेंस। मैं फ्रंट साइड में जो आप डाटा फिल करते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, मदर फादर्स नेम है, उनका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, तो आपका कंप्लीट डाटा के साथ ही आप अपना रजिस्टर न्यू क्लास टीचर को या आपके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हैंडओवर करेंगे। ओला जो अभ्यर्थ के बारे में प्रोग्राम रखे, आप सभी को मालूम था कि एक हफ्ता पहले हमने छात्रों को मिडिल क्लास का 6वीं 7वीं के छात्रों का यहाँ प्रोग्राम रखे थे। उसी पर चर्चा में बात आई थी कि हम शिक्षकों को कुछ करना चाहते हैं। सभी शिक्षक विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षकों को स्वास्थ्य रहे इसकी हम कामना भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी कई बार व्यस्तता भागदौड़ इतनी होती है कि आप जाकर भी हॉस्पिटल में अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करा पाते हैं। तो ये आपके पास सभी शिक्षकों के पास एक सुनहरा अवसर है, इसका लाभ उठाएं। आप किसी भी हॉस्पिटल Sir and thank you ma'am. Now I request Rashi ma'am for vote of thanks. Good afternoon, respected principal sir, Adya ma'am, chairman sir, Sharma sir, and all the teachers